मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सागर। आज हम एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का नेक्स्ट टॉपिक जो कि यूनिट 3 है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक नंबर 3 है। दो टॉपिक हम पहले फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। थर्ड हमारा आज का जो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर राउटिंग, चलिए क्या होता है हम देखते हैं। इसके अंदर अगर 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं, रिप RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरल ग्रुप्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो 2 जनरल ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। एंड इंटीरियर प्रोटोकॉल इज अ routing protocol used inside interior to an independent network system in TCP/IP terminology. These independent network system are called autonomous system, और इस टाइप के systems को हम autonomous system बोलते हैं। With an autonomous system AS, routing information is exchanged using an interior protocol used by the autonomous system administration. And autonomous system AS is a collection of routers that share same routing table information. AS is boundaries lines for routing protocols. Second, it could be your company or groups or companies. It is defined by a numeric value. Third, switches from place to place between the routers. Figure out the protocols are utilized to keep track of getting between between destinations to other side of a network or to administrate the network. Next हमारा है, these protocols perform the communication between networks. IGPs falls into 2 categories. First is distance vector protocol and second is distance vector protocols and routing information protocol, interior gateway protocols, and the second is link state protocols. And link state protocols contains OSPF, open shortest path first, and ISIS, intermediate system to intermediate system. जो हमारे IGPs होते हैं वो 2 कैटेगरीज में होते हैं। पहला होगा हमारा डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स, इसके अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल आएंगे, और दूसरा हमारा होगा लाइन प्रोटोकॉल्स, इसके अंतर्गत भी 2 प्रोटोकॉल आएंगे। ऑल इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स परफॉर्म द सेम बेसिक फंक्शन, डिटरमाइन द बेस्ट रूट टू ईच डेस्टिनेशन। सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स सेम फंक्शन को क्या कहते हैं, डिटरमाइन करते हैं और बेस्ट रूट हर एक डेस्टिनेशन के लिए फाइंड करते हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट राउटिंग इंफॉर्मेशन एमंग द सिस्टम ऑन अ नेटवर्क. How they perform these functions in particular, how they decide which routes are best, is best is what makes routing protocols different from each other. There are several interior protocols. First is RIP and routing information protocol. The interior protocols most commonly used for Unix system. RIP is included as a part of Unix software delivered with most systems. It is adequate for local area network and is simple to configure. RIP selects the route with the lowest hop count, merits as the best route. The RIP host count represents the number of gateway through which data must pass to reach its destination. RIP assumes that the best route is the ones that uses the fewest gateway. This approach to route choose is called distance vector algorithms. ISIS is an interior routing protocols from the OSI protocol suite. It is the shortest path first. लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स, ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ही सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ को ही प्रेफर करता है. फिर वॉज द इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज ऑन द T1 NSF
NET backbones and it is still used by some large service providers. Open shortest path. It is link state protocols developed for TCP/IP. It is suitable for very large network and provides several advantage of RIP. Exterior routing protocol. Second है हमारा exterior gateway protocols. Exterior gateway protocols is a routing protocol that used exchange routing information between autonomous system. दो autonomous system से routing information को exchange करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. एंड इसके अंतर्गत आते हैं border gateway protocols and exterior gateway protocols. Border gateway protocol is standardized exterior gateway protocols designed to exchange routing and reachability information among autonomous system on the internet. The protocol is classified as path vector protocols. The border gateway protocols makes routing decision based on the path. ये जो है पाथ के अनुसार डिसाइड करेगा राउटिंग्स के लिए, राउटिंग डिसीजन के लिए. Path, network policies or rule sets configured by a network administrator and is involves in making core routing decisions. Next है हमारा exterior gateway protocol. Exterior gateway protocol is a protocol for exchanging routing information between two neighbor गेटवे होस्ट. जो दो आपस के गेटवे होस्ट होंगे, पड़ोसी होंगे, उनके बीच की इन्फॉर्मेशन को ये शेयर करेगा. EGP is commonly used between hosts on the internet to exchange routing table information. The routing table contains a list of known routers that the addresses that they can reach and the cost merit associated with the path to each router is so that the best available router is chosen. Each router pools its neighbors at intervals between 120 to 480 seconds and neighbors responds by sending its complete routing tables. EGP2 is the latest version of EGP. ये हमारा था एक्सटीरियर राउटिंग एंड इंटीरियर राउटिंग. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट. यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट क्या होता है हम देखते हैं. टाइप्स ऑफ कास्टिंग. यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट जो तीन टाइप की होती हैं. पहला हमारा होगा यूनिकास्ट, दूसरा होगा ब्रॉडकास्ट और तीसरा होगा मल्टीकास्ट. और जो ब्रॉडकास्ट है उसके अंतर्गत हमारा आता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट. चलिए हम बेसिकली समझ लेते हैं. यूनिकास्ट में जो हम एक जगह मैसेज डिलीवर कर सकें वो यूनिकास्ट होगा. मल्टीकास्ट में एक मैसेज को कई जगह, ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज को सभी जगह. ये लिमिटेड हो सकता है और ये डायरेक्ट भी हो सकता है. चलिए हम इनको एक टेबल के द्वारा हम समझते हैं. ये क्या होता है यूनिकास्ट. इन यूनिकास्ट डेटा इज डिलीवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वही हमने जो समझा है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेगा. एंड ब्रॉडकास्ट डेटा इज डिलीवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू सेवरल पॉइंट्स. एक पॉइंट से बहुत सारे सेवरल पॉइंट्स में जाएगा. एंड मल्टीकास्ट डेटा डिलीवर फ्रॉम वन टू वन और मोर पॉइंट्स. मल्टीकास्ट में भी या तो वन टू वन जाएगा या वन टू मोर पॉइंट्स पे जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट में सेवरल पॉइंट्स पे जाता है. सेकेंड है इट हैज़ ओनली वन सेंडर एंड वन रिसीवर. ये यूनिकास्ट में एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट में इट हैज़ ओनली वन सेंडर बट डिफरेंट रिसीवर. इसमें सेंडर एक होगा लेकिन रिसीवर बहुत सारे होंगे. मल्टीकास्ट में इट हैज़ वन और मोर सेंडर. मल्टीकास्ट में एक और एक से अधिक सेंडर हो सकते हैं एंड दे मे बी जीरो और मोर रिसीवर, और जीरो और मोर रिसीवर हो सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इट इज़ सिंगल लैन इंटरफेस मीन्स ओनली स्पेसिफिक होस्ट. ये सिंगल लैन इंटरफेस होता है किसी स्पेसिफिक होस्ट के लिए. इट रिप्रेजेंट्स ऑल द डिवाइस इन लेंस मीन्स सेंडिंग टू ऑल होस्ट इन अ नेटवर्क. इसमें जो सारे होस्ट होंगे नेटवर्क में उसको हम डेटा को ट्रांसफ़र कर देंगे. इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन लैन मीन्स सेंडिंग टू स्पेसिफिक होस्ट. नेक्स्ट है हमारा इफ़ सेम मैसेजेस इज टू बी डिलीवर्ड टू डिफरेंट डिवाइस देन मल्टीपल यूनिकास्ट इज रिक्वायर्ड. ब्रॉडकास्ट में इन दिस सेंडर send traffic broadcast address all those devices whose have
broadcast address will proceed it. And multicast में multicast uses IGMP to identify the groups to which messages is to be sent. Unicast it is 1-to-1 टेक्निक, ये 1-to-1 टेक्निक पे डिपेंड होगा या बेस्ड होगा. इट इज़ 1-to-many टेक्निक्स. ब्रॉडकास्ट 1-to-many टेक्निक्स एंड मल्टीकास्ट इट इज़ 1-to-many. Example of broadcast is unicast is websites. Example of broadcast is audio message and multicast is ARP request messages. ये टेबल है, इसमें यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. ब्रॉड है कि ये जो हमारा नेटवर्क क्लस्टर है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है, एक के द्वारा इन सभी को इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है. तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में सपोज यू हैव टू सेंड stream of packets to all the devices over the network that your resides. The broadcast comes handy. For this to achieve, it will append 255.255.255.255 all the 32 bits of IP address set to 1, called the limited broadcast address. सेकेंड है हमारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट. डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में एक नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क्स के सारे हमारे नेटवर्क्स बी के सभी डेटा, सभी क्लस्टर्स को डेटा या सभी रिसीवर्स को डेटा सेंड कर रहा है. डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट दिस इज यूजफुल टू अ डिवाइस वन नेटवर्क वांट्स टू ट्रांसफर पैकेट्स स्ट्रीम टू ऑल अदर devices over the network. This is achieved by translating all the host ID parts bits of the destination address to one, refer as direct address in the datagram header for the transfer header. ये हमारे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं. यूनिकास्ट में 1-to-1 है, ब्रॉडकास्ट में 1-to-many है एंड मल्टीकास्ट में फिर 1 और मोर देन 1 है, लेकिन 1 एक से अधिक हो सकता है, एक और एक से अधिक हो सकता है मल्टीकास्ट में. ब्रॉडकास्ट में बहुत सारा हो सकता है. लिखा हुआ ब्रॉडकास्ट 1 सेंडर ऑल द अदर रिसीवर. एंड देखो ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेंडर होगा, रिसीवर्स अदर होंगे. यूनिकास्ट में 1 सेंडर होगा एंड 1 रिसीवर होगा. मल्टीकास्ट में 1 सेंडर होगा एंड पोटेंशियली मैनी रिसीवर्स हो सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स. ये मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं जो हमारा एक सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें हम बात करेंगे. आज हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मल्टीकास्ट में हमारा होगा डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग, मल्टीपल ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, क्रॉस बेस ट्री प्रोटोकॉल, इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट बैकबोन एंड एनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स एंड CIDR क्लासलेस इंटीरियर डोमेन्स. ये हम एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा, 5th मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.